Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. Myself Piyush Kumar Verma, and friends, in this video I am going to discuss about noise pollution, that is part 3. But friends, before discussion, I would like to remind you I have already made part 1 and part 2 of noise pollution video, so you can go through the description. In this video description I have already mentioned the link for noise pollution part 1 and part 2 videos, so you can go through links and access and watch those videos. Okay, so today in this video I will cover those topics which have still not been covered in the previous videos. So friends, what we are going to discuss today we are going to discuss in the section of measurement. I will discuss about various uh, sound intensity and various conditions and formulae, and then noise pollution and control rule 2000 under Environment Protection Act 1986, as well as adverse effect of noise pollution and control of noise pollution. So friends, let us start the video. Okay friends, and after watching the video, if you think this video is helpful and useful for you all for the preparation point of view of entrance or UGC NET examination point of view, so do subscribe and share my channel. Friends, let us start. So as we know that if we are going to talk about sound pressure level or intensity, so I have already in a video sound pollution part 2 I have discussed this table, but today in this video in terms of intensity we have already discussed spherical source, point source and line source, but today I will discuss about decibel addition. So friends, what is decibel addition? So for the effective sound level from two or more sources can be added by the following method, and this method involves the first condition: when several different decibel values are added, then sound will become L sum is equal to 10 log in the bracket 10 to power LP1 upon 10 plus 10 to power LP2 upon 10, and it will be up to 10 to the power LPn upon 10. Okay, so friends, for example, I take an example. Suppose that the effective sound level from two air conditioners 60 decibel each will not be, suppose that 60 plus 60 is equal to 120. No, this is not correct. So rather it will be 60 plus 3 means 63 decibel by the up. Now the question comes in her mind, how I calculated, or so now let me tell you. You should prefer a shortcut method. And what is shortcut method? So let me make you understand in Hindi. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एडिशन ऑफ साउंड लेवल की, तो सपोज दैट कि L1 और आपका L2 दो आपके साउंड लेवल दिए गए हैं. ओके, और दोनों के दोनों साउंड लेवल आपके डेसिबल्स में दिए गए हैं, और L1 आपका क्या है, L2 से बड़ा है. ठीक है, तो ऐसे केस में L1 और L2 का हम पहले तो डिफरेंस निकाल के देखेंगे. ठीक है, तो L1 और L2 का डिफरेंस यदि आपका 0 या 1 आता है, तो हम क्या करेंगे कि जो L1 वाला वैल्यू है उसमें हम कितना जोड़ देंगे, तो वहाँ पर 3 डेसिबल ऐड कर देंगे. ओके, जैसे मान लीजिए कि जो आपका एयर कंडीशनर वाला हमने देखा, तो उसमें क्या था कि 60 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे वाले एयर कंडीशनर से भी 60 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो ऐसे केस में 60 डेसिबल और 60 डेसिबल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है. तो 60 में अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 डिफरेंस आ रहा है. और 0 डिफरेंस का मतलब क्या है, तो हम L1 जो ये वाली वैल्यू है ना, और ये आपकी क्या है L2, तो हम L1 में ऐड कर देंगे कितना, तो हमने अगर ऐड डिफरेंस करना है हमें 3 का, तो हम 60 में 3 का एडिशन करेंगे, कितना आएगा वैल्यू, तो वो होगा आपका 63 डेसिबल. ये आपका होगा रिजल्टेंट. ठीक है, तो यदि आपके दो कह सकते हैं कि साउंड लेवल्स अगर दी गई हैं L1 और L2, जिसमें से एक ग्रेटर है और एक आपका स्मॉलर है, तो हम ग्रेटर वाले वैल्यू में यानी कि ग्रेटर साउंड लेवल में हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं. ठीक है, जो आपका डिफरेंस है. और यदि मान लीजिए कि डिफरेंस
अगर 2 आता है यानी कि L1 और L2 को सब्ट्रैक्ट करने पे उनके बीच का जो अंतर है वो अगर 2 आता है या 3 आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू में। और साथ ही साथ यदि डिफरेंस आपका 4 से लेकर 9 के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, तो L1 वाली वैल्यू में हम जोड़ देंगे आपका इस बार 1 डेसिबल, ओके। और यदि कोई यहाँ पर जो डिफरेंस है 10 और मोर देन 10 होगा तो ऐसे में हम लोग L1 में कुछ भी नहीं जोड़ते, मतलब कि 0 डेसिबल ऐड करते हैं। तो वैसे केस में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारे पास L1 इज इक्वल टू क्या है, तो L1 इज इक्वल टू मैंने कहा कि वो 70 डेसिबल है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप यूनिट को समझ सकते हो, और L2 मान लेते हैं वो हमारा 60 डेसिबल है ना। तो अब क्या करेंगे, तो डिफरेंस इसका पता किया जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 60 में से 70 आप घटाओगे तो 10 डेसिबल का डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस है, तो हमें कितना ऐड करना है, फिर इस टेबल में से देख लीजिए। तो 10 डिफरेंस है, मतलब क्या कि आपके L1 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, 0 डेसिबल जोड़ना है। तो 0 डेसिबल अगर जोड़ेंगे तो यानी कि L1 की वैल्यू क्या है आपकी 70, तो 70 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपका 70 डेसिबल। तो ये आपका होगा रिजल्टेंट, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डेसिबल के सब्ट्रैक्शन की। सो डेसिबल सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और क्या है वो फॉर्मूला ये होता है आपका L डिफरेंस इज इक्वल टू 10 लॉग ब्रैकेट में 10 टू द पावर LP1 बटे में 10 माइनस 10 टू द पावर LP2 अपॉन 10, ओके। तो आपके 2 साउंड लेवल्स दिए गए हों, ओके फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो है हमारे, अगर इंडियन रेगुलेशन की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन के लिए हमारे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 जो है वो आता है। तो इसमें हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉइज लेवल स्टैंडर्ड। तो क्या है वो स्टैंडर्ड, चलिए हम देखते हैं। तो ये आपका रूल जो है अगर देखा जाए तो 4 एरिया को कवर करता है। नॉइज जो आपका स्टैंडर्ड है वो है आपका एरिया 1, यानी कि हम बात करें या कोड तो A, B, C एंड D, ओके। ये आपके चारों एरिया हैं। फिर अब इसमें कौन कौन से एरिया, तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हम A जोन में रखे हैं, कमर्शियल एरिया जिसको हम B, और रेजिडेंशियल को C, और आपका साइलेंस जोन को D एरिया, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो लेवल क्या होता है डे एंड नाइट टाइम में, तो डे एंड नाइट टाइम में आपका होगा वो हो जाएगा आपका ऑब्वियसली 75 to 70 एंड 65 to 55 एंड 55 to 45 एंड 50 to 40, ये आपके लेवल्स हैं, ओके। सो इसको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आप देखोगे नॉर्मली जो है कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया के केस में 65 और 55 डिफरेंस कितना आता है, 10-10 का आ रहा है, यानी कि 10-10 का अंतर, तो आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ साइलेंस जोन में भी यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डे एंड नाइट वाले में 10 डेसिबल का। तो याद करना थोड़ा सा फ्रेंड्स एक आसान हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है कि डे और नाइट में 5 डेसिबल का डिफरेंस है, यानी कि 75 डे में होता है और नाइट में 70 डेसिबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि डे टाइम क्या होता है। तो डे टाइम का मतलब ये है कि 6 बजे सुबह से लेके और रात के 10 बजे तक, यानी कि 10 PM तक वो डे टाइम होता है। जबकि नाइट टाइम जो है आपका 10 PM यानी कि रात के 10 बजे से आपका सुबह 6 बजे तक होता है। और साइलेंस जोन की अगर बात करूँ तो साइलेंस जोन एक ऐसा जोन होता है जिसके आसपास लगभग 100 मीटर एरिया में, है ना, जैसे कि आपका हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोर्ट है, या कोई धार्मिक स्थान, रिलीजियस प्लेस है, या फिर कोई अदर एरिया हो जिसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया हो, तो उसका आसपास का 100 मीटर एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई भी नॉइज पोल्यूशन नहीं करनी। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं ना कि डेसिबल क्या है। तो डेसिबल आपका एक यूनिट है जिसमें हम नॉइज को मेजर करते हैं। और साथ ही साथ DBA जो लिखा होता है वो है क्या भाई, तो वो आपका है कह सकते हैं कि ये डिनोट करता है आपका टाइम वेटेड एवरेज को, जो कि लेवल ऑफ साउंड होता है, ठीक है, उसके एवरेज को किस में, तो डेसिबल में। और किस स्केल पे, तो वो आपका है स्केल A, इसलिए हम लिखते हैं DB स्केल A विच इज़ रिलेटेबल टू ह्यूमन हियरिंग, ओके। एंड A क्या है, तो भैया A जो आपका होता है वो डिनोट करता है आपका फ्रीक्वेंसी, it denotes the frequency weighting in the measurement of noise and correspond to the frequency response characteristic of the human ear. and LEQ क्या है भाई, तो ये आपका है it is an energy mean of the noise level over a specified period, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइज की। सो फ्रेंड्स, एडवर्स इफेक्ट की बात करो तो ये आपकी ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एक्सपोजर ऑफ नॉइज है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, टू ब्रिंग अबाउट एक्टिवेशन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन अ सिमिलर वे एज हीट कोल्ड पेन। तो जिस तरह से हमारे बॉडी को हीट से, कोल्ड से और पेन से प्रॉब्लम होती है ना, देयर डिफ़िकल्टी इंक्रीज होती है, उसी तरह से जब साउंड लेवल इंक्रीज होगा तो काफ़ी जो है हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है। सो वन ऑफ द शॉर्ट टाइम रिएक्शन इज़ द चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर तो बीपी में वेरिएशन आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें अदर इफेक्ट्स की तो आपका वो अदर इफेक्ट क्या होगा, अब आपका अदर इफेक्ट जैसे आपका ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स आर the increased release of insulin in pancreas and it increase in the excretion of oxytocin and ADH from the posterior, and it also decreases the detoxifying function of the liver, including aromatic substances with carcinogenic effects. So long term अगर noise exposure हो रहा है तो it can produce stomach ulcer, reduce flow of gastric juice and changes acidity and neurosis, allergies and circulatory disease and abortion and other congenital defects in children and deafness. तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका डीफनेस भी हो सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है नॉइज की वजह से, वो है आपका स्लीप इंटरफेरेंस, है ना। तो और तीसरा आपका प्रॉब्लम जो है आपका इफेक्ट ऑन वर्किंग इफिशियंसी। और हम बात करें चौथा आपका जो है तो इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। सो फ्रेंड्स, जो आपकी बात करें वाइल्ड लाइफ की तो नॉइज जो है काफ़ी साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि ह्यूमन पे करता है, तो वैसे ही एनिमल भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब महसूस करते होंगे जब उनको भी हाई नॉइज अगर उन एक्सपोजर दिया जाए तो ऐसे केस में इट हैज़ बीन सर्वेड दैट noise has adversely affected the wildlife of the country. So it has been observed by the zoo authority that animals, particularly deer, lions, rhinos, are the worst affected ones by the traffic noise. They become dull, inactive, lesser and reproductive. So lesser reproductive and ill. If we talk about effect of non-living things, so what is effect on non-living things? So noise effect, even the non-living things, high intensity noise may produce cracks into buildings. The noise and vibrations from machinery result in shattering of foundations, loosening of plasters and cracks in walls and household crockery. Now we shall talk about the control of noise pollution. So there are three principles which should be followed to control noise pollution. So the first one is the noise control at source, okay, and the second one is noise control as path, and the third one is noise control at receiving end. Okay, so these are the three basic principles which would be followed. So the first, noise control at source, it can be done in an industry. To control the noise at source, the machinery should be equipped with effective silencers properly installed on the designed foundation and well maintained. Use of shock absorbing material, efficient flow technique, reducing flood jet velocity, restricting sound producing area, and reducing peak acceleration are some of the technique of noise control at source. Okay, as well as for workers we can see the use of guard covers, enclosures and muffler system, sealing all openings, use of proper cutting speeds, and we can say feed rate are other ways of noise reduction. So proper maintenance of machine by lubrication and timely replacement of bearings is the main thing required for the control of noise at source. And if we are talking about noise control at path, so the modification of sound path includes, so you can see, first, use of solid high barriers to interrupt the direct transmission, solid fences and high earth beam burns can be provided up to attenuation along the highway. And second one, increasing distance between the source and the receiver. And third one is planting trees
and trees are very good absorber of the sound and otherwise also very much useful as described earlier. So third one is noise control at receiving end. So this is most important because to control the noise at receiver level following measures are adopted. Normally double glazing window in the building for improved soundproofing, and gasketing and sealing door and window openings, as well as providing additional sound insulation for roofs and walls and isolate the operator from the noise, as well as by controlling hours of exposure to noise and use of personal protective devices like earplug, ear defenders and disposable earplugs, etc. Okay friends, so thanks for watching this.